Good morning, everyone. I am Amrita Shrivastava, faculty of US Academy and Institute, and today we will discuss about Class 8 Supplementary Chapter 9, and the name of the chapter is The Comet First. So, this chapter is about the comet first. Comet First. So, we will learn about Comet First. The Comet First tells us a story about Dattada, an amateur astronomer who can't stay away from his 8-inch long telescope. Divya, who helped him accomplish his sacred ambition of discovering a comet. Once Comet Datta is discovered, a few calculations by professional astronomers and scientists show that the comet will collide with the earth, resulting in end of the life on the planet. Thus they plan to call an international conference to resolve the matter. So let's start this chapter and we will read it pairwise, and let's understand what is going on in this chapter. It was a moonlight night in December. A burst of cool breeze from the window was enough to disturb the sleep of Indrani Devi. Half awake, she felt the adjoining pillow, although she knew the answer, the Tata was not there. So, two words you will find in this chapter everywhere, that is प्रोफेशनल्स और एमेच्योर. सो प्रोफेशनल्स हम उनको बोलते हैं जो प्रॉपर किसी चीज़ के लिए किसी इंस्टीट्यूट में काम करते रहते हैं, और एमेच्योर हम उनको बोलते हैं स्टूडेंट्स जब कोई अपनी चॉइस से सेम फील्ड पे काम करता है. वो उसका प्रोफेशन नहीं होता है, उसका बस इंटरेस्ट वाइज वो ये काम करता रहता है. तो दत्ताता ऐसे ही एक एमेच्योर साइंटिस्ट हैं जो कि लगे हुए हैं एक कॉमेट की खोज करने में. ठीक है, तो फर्स्ट पैसेज पढ़ के आपको ये पता चलता है कि इंद्राणी देवी जो कि इनकी वाइफ हैं वो सो रही होती हैं और बहुत ही तेज़ हवा का झोंका आता है जिससे उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है. फिर वो अपने बगल वाला पिलो को टच करके देखती हैं तो उनको लगता है कि दत्ताता एज यूजुअल वहाँ पे नहीं थे. ठीक है. ही वॉज गॉन टू हॉबनॉम विद दैट रेस्ट दिव्य एट लिस्ट. He might have bothered to close the door. Even as she muttered her complaints, Indrani Devi could not repress her smile. She knew how utterly oblivious her husband was the practical problems of living. Didn't his doctor tell him to take special precautions against a cold? But he would not remember to put on a sweater even if was lying on the bed on his bedside chair. How could he when Divya had put her spell on him? She picked up the white woolen pullover, wrapped herself in a shawl, and made her way to the roof to break up his tete-a-tete with Divya. So, students, the beginning of the story is set on a moonless night in December when Indrani Devi's sleep is disturbed by a cold breeze. Upon checking the pillows next to her, she realizes that her husband was not there, which she was quite already aware of. Knowing that her husband is forgetful about the practical problems of living, she took his pullover, wrapped herself in a shawl, and walked towards the roof. Just because she was knowing that her husband is very careless about his health, so she knew her husband would be there hobnobbing with Divya. Divya was the name of his telescope. Divya Chachu or divine. That means the meaning of Divya is Divya Chachu, यानी कि दैवीय नेत्र जो होते हैं या फिर डिवाइन आई हम उसको बोल सकते हैं, जो कि नाम रखा था इंद्राणी देवी ने उनके 8-इंच लॉन्ग टेलीस्कोप का, जो कि दत्ताता का था. He was quite proud of its name, whereas his wife considered the telescope as a designing woman, so she preferred calling it Divya only.
Indrani Devi gave him his pullover while telling him that he better wear if it is he wished to avoid bed rest the next day. That means डॉक्टर ने उनको क्लियरली बोल के रखा था कि विंटर सीजन में आपको अपनी प्रॉपर केयर करनी होगी, और जबकि वो क्या करते थे, टेलीस्कोप से वॉच करने के लिए, जो कि ऑब्वियस ही है कि आपको अपने स्पेस पे जाना पड़ेगा स्काई को वॉच करने के लिए, तो वो छत पे जाके बैठ जाते थे बिना किसी स्वेटर को पहने या फिर शॉल को ओढ़े। तो वो उनको लेके गई कि अगर आप बेड रेस्ट नहीं चाहते हैं, नेक्स्ट डे बीमार नहीं पड़ना चाहते हो, तो आपको क्या करना चाहिए, ये कवर करके अपने आप को रखना चाहिए। To Ratata, the telescope marked the fulfillment of the ambition of a lifetime. As an amateur astronomer, he had longed for enough money to buy a good telescope and for enough spare time in which to observe the heavens. He got them both when he retired with ample money. The telescope was duly installed, and long were to the dark nights that the Tata spent in stargazing. At least Indrani Devi thought so. सो स्टूडेंट्स, एज वी नो, दत्ताता जो थे वो क्या थे, एक प्रोफेशनल साइंटिस्ट तो थे नहीं, एक एमेट्योर थे, तो उनके पास बहुत पैसे नहीं थे कि वो अपने शौक़ को पूरा कर सकते। तो जब वो अपनी जॉब से रिटायर हुए थे तो उनको खूब सारे पैसे मिले थे रिटायरमेंट में, जो कि मिलते हैं फ़ंड वगैरह, तो उससे उन्होंने वो टेलीस्कोप ख़रीदा था और हमेशा अपनी डिस्कवरी में वो लगे रहते थे। हियर पुट ऑन दिस स्वेटर और डू यू वांट नवीन बाबू टू ऑर्डर बेड रेस्ट टुमारो। तो उनकी वाइफ ने कहा कि स्वेटर पहनो या फिर डॉक्टर जो है तुमको बेड रेस्ट के लिए बोल देंगे। लाइक एवरी अदर amateur astronomer, Dattata had a secret ambition that he would one day discover a new comet. For comets can be new coming as they do from the remote corners of the solar system. Like planets, comets also orbit round the sun, but their orbits are highly eccentric. So once in a while a comet comes close to the sun. It has a long tail that it's lit brilliantly by the sunlight, and then it recedes into darkness, not to be seen again for years और फॉर सेंचुरीज। तो जो कॉमेट्स होते हैं वो बहुत ही सालों में कभी भूले भटके एक बार दिखाई देते हैं, सडनली वो अपीयर होते हैं और उनकी एक टेल आपको दिखाई देगी जब भी वो अपीयर होते हैं, और उसके बाद सेंचुरीज या ईयर्स के लिए फिर से वो गायब हो जाते हैं। तो दत्ताता की ये हार्दिक इच्छा थी कि उनको भी कोई ऐसा कॉमेट वो डिस्कवर कर लें जो कि जिसमें वो बहुत दिनों से लगे हुए थे। What chance did he stand with his 8-inch दिव्य? Didn't professional astronomers have gigantic telescope? तो उनको लगता था हमेशा कि क्या वो कर पाएंगे अपने 8 इंच के दिव्य से, यानी कि जो उनका टेलीस्कोप था, क्योंकि प्रोफेशनल जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं उनका टेलीस्कोप काफ़ी हैवी और काफ़ी बड़ा होता है। बट दत्ताता वॉज ऑप्टिमिस्टिक, बहुत ही पॉजिटिव वे ऑफ लाइफ जीते थे वो, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक थे। ही न्यू दैट द प्रोफेशनल्स विद देयर प्री असाइंड प्रोग्राम्स वुड बी लुकिंग एट फेंट स्टार एंड नेबुलस गैलेक्सीज. They might miss such as insignificant thing as nebulous galaxies. They might miss such as things as a comet, which they were not expecting to see anyway. Indeed, amateurs had often discovered new comets which the professional had missed. तो मोस्टली ऐसा होता था, दत्ताता ऐसा सोचते थे कि जो एमेट्योर होते हैं वो सडनली ऐसी चीज़ें डिस्कवर कर जाते हैं जो हमारे प्रोफेशनल साइंटिस्ट मिस्ड कर चुके होते हैं। एंड इट लुक टू दत्ताता दैट टुनाइट वाज गोइंग टू बी द बिग नाइट फॉर अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ द सेम ओल्ड स्टार दत्ताता हैड डिटेक्टेड अ फेंट स्ट्रेंजर. He re-examined the charts with him, checked his divya for any smudges on the optics, did some calculations on his pocket calculator. In torchlight for through absent-minded about daily course, he was meticulous in his observations. सो सारी कैलकुलेशन सारे चार्ट्स पे लेके उन्होंने फिर से वर्क किया। उनको अश्योर था कि आज की रात जो है वो कुछ स्पेशल हो गया और उनको कोई ना कोई कॉमेट ज़रूर दिखाई देगा। सो अपने दिव्य को जो ग्लास थे उसके टेलीस्कोप के उसको प्रॉपर चेक किया कि उस पर कोई स्मज ना हो, और उसके बाद सारे कैलकुलेशन लेके वो फिर से अपने ऑब्जर्वेशन के लिए बैठ गए। येस, देयर कैन बी नो मिस्टेक
what he was looking at had not been there earlier and didn't look like a new comet. तो उनको सडनली कुछ दिखाई दिया, बट ये किस तरीके का था, उनको लगा कि कोई एक नया कॉमेट जो है आज विजिबल उनको हुआ है। तो उनका जो धारणा थी वो सच हो गई थी, कोई गलती नहीं थी उसमें, उन्होंने सच में एक नया कॉमेट खोज लिया था आज। 2 days later, the Anand Bazar पत्रिका came out with the news, Calcutta man discovered new comet। और 2 दिन के बाद न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ आ गई कि कलकत्ता के एक मैन ने जो डिस्कवर किया है न्यू कॉमेट को। फ्रॉम आवर स्पेशल करेस्पॉन्डेंट। सो विशेष सूत्रों से ये पता चला है, श्री मनोज दत्ता, अ रेजिडेंट ऑन द नॉर्दर्न आउटस्कर्ट्स ऑफ कैलकाटा, हैज़ क्लेम टू हैव डिस्कवर्ड अ न्यू कॉमेट। तो दत्ताता ने क्लेम किया था कि एक न्यू कॉमेट उन्होंने देखा है। ही हैज़ सीन द कॉमेट ऑन द लास्ट 2 nights एंड हैज़ इन्फॉर्म द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। उसको उन्होंने इन्फॉर्म किया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स को, जो कि बेंगलोर में था। द IIA रन्स अ 90-inch टेलीस्कोप। उसके पास 90 इंच का टेलीस्कोप था और दत्ताता के पास 8 इंच का था। द बिगेस्ट इन एशिया एट कोलार। इफ इट कंफर्म्स, दत्ताता's finding will be the high point in his lifelong career as amateur astronomer. Dattata, as if he is affectionately called by his friend and admirers, estimates that the comet would be clearly visible to the naked eye in the next few months. He gives all credit for his discovery to his 8-inch telescope, which he calls दिव्य। दत्ता ने कंफर्म किया कि जो कॉमेट है वो बहुत जल्दी इतना बड़ा होगा और इतना मतलब टोटली विजिबल होगा कि आप उनको अपनी आइज से भी देख पाएंगे कुछ मंथ्स में। और इसको डिस्कवर करने का सारा क्रेडिट उन्होंने दिया था अपने दिव्य को, जो कि उनका टेलीस्कोप था। देयर आफ्टर इट टुक जस्ट 1 week फॉर कॉमेट दत्ता टू बी रिकॉग्नाइज्ड एंड सो नेम्ड। सो 1 हफ्ते के अंदर मतलब उसकी जांच पड़ताल हुई, फिर से उस पर खोज की गई और उसका कॉमेट का नाम उनके नाम के कॉमेट दत्ता रख दिया गया। फॉर द IIA confirmed the findings and communicated it worldwide, and according to accepted practice, the new comet was named after its discover। तो जब कंफर्म कर दिया था IIA ने, तो उसके बाद उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, पूरे वर्ल्ड वाइड इसको स्प्रेड किया गया न्यूज़ को और उस न्यू कॉमेट को एक नाम दे दिया गया। क्या नाम दिया गया था? कॉमेट दत्ता। दिस ब्रॉट इन अनवेलकम पब्लिसिटी टू द इंट्रोवर्ट दत्ताता। तो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, वो बहुत ही इंट्रोवर्ट थे, यानी कि बहुत ही शर्मीले स्वभाव के थे। देयर वर न्यूमरस रिसेप्शंस एंड फंक्शन टू अटेंड। बहुत सारे इनविटेशन आने लगे उनको। ऐसा होता है जब आप फेमस हो जाते हो तो आपके सारे रिलेटिव्स आपको ज़्यादा याद करने लगते हैं, तो जितने भी फंक्शंस रिसेप्शन होते थे वो अटेंड करने का उनको इनविटेशन आने लगा। रिटर्निंग फ्रॉम वन सच सेरेमनी, दत्ताता मटर टू हिमसेल्फ इन डिस्गस्ट। बहुत परेशान होकर उन्होंने बोला, आई ऑलमोस्ट विश आई हैड नॉट डिस्कवर द कॉमेट दिस कॉमेट। कितना अच्छा होता अगर मैंने ये खोजा ही नहीं होता, मुझे इतनी जगहों पे जाना नहीं पड़ता। टू हिज सरप्राइज इंद्राणी देवी अग्रीड, आई विश द सेम दो नॉट फॉर द सेम रीजन। मुझे भी ऐसा लगता है, मतलब मैं भी चाहती हूँ कि तुमने इसको नहीं ढूंढा होता, लेकिन मेरा रीज़न अलग है। मे आई आस्क वाई यू विश आई हैड नॉट डिस्कवर्ड द कॉमेट, दत्ताता आस्क्ड। क्यों तुमको लगता है कि मैंने ये नहीं खोजा होता अगर तुम्हारा रीज़न अलग है? दत्ताता ने पूछा अपनी वाइफ से। कॉमेट्स ब्रिंग इल लक एंड आई विश अ गुड मैन लाइक यू वर नॉट एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ वन, इंद्राणी देवी सेड विद कंसर्न। इंद्राणी देवी बहुत परेशान हो गई थी क्योंकि उनको लगता था कि जो दुर्भाग्य लाता है ये कॉमेट्स का खोज, और कितना अच्छा होता कि तुम्हारे जैसे अच्छे आदमी के साथ इस कॉमेट का नाम नहीं जुड़ा होता। Dattata laughed. I see that even an MA degree has not cured you of your superstition। मतलब तुम्हारी MA की डिग्री, जो मास्टर डिग्री है तुम्हारे पास, वो भी तुमको बचा नहीं पाई तुम्हारे अंधविश्वास से। There is no correlation whatsoever with the arrival of comet and the calamities of the earth। तो कॉमेट की डिस्कवरी या कॉमेट के आने में और जो आपदाएं आती हैं पृथ्वी पे, इनका आपस में कोई संबंध होता नहीं है, ये बस तुम्हारा अंधविश्वास है।
On the contrary, comets have been scientifically studied and their composition is well understood. There is nothing harmful about them. Comets जो हैं बिल्कुल भी harmful नहीं होते हैं, उनकी बहुत ही proper study की जा चुकी है. Well, you will soon see this comet of mine pass harmlessly by causing no anxiety to anybody. मतलब मेरा ये जो कॉमेट मैंने सर्च किया है वो बिना नुकसान पहुँचाए बहुत ही जल्दी पृथ्वी के पास से गुजर जाएगा और किसी को कोई नुकसान नहीं होगा. इन दिस लास्ट कमेंट हाउएवर दत्ताता वॉज नॉट गोइंग टू बी एग्जैक्टली राइट. तो जब इन्होंने ये बात कही दत्ताता ने तो खुद भी इतने श्योर नहीं थे कि ये कॉमेट किसी को हार्म नहीं करेगा. This chapter is very long, so we will discuss its next part in our next video. Till then, take care.